दोस्तों, मैं एजाज खान आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की यूआईआईसी टीम द्वारा ये इंडस्ट्री गेस्ट लेक्चर की सीरीज आयोजित की गई है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि हम हर चीज ऑनलाइन करते हैं। पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं, सारे कोर्सेज अब ऑनलाइन हो रहे हैं। काम, कनेक्शंस, बातें, एंटरटेनमेंट सब गैजेट्स पे और सब ऑनलाइन हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि इन गैजेट्स के और हर समय ऑनलाइन होने से शारीरिक और मानसिक नुकसान होते हैं। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर ध्यानेश्वर नेरकर। ध्यानेश्वर जी has more than 15 years of experience in the IT world. He's a co-founder at TechVision. TechVision provides accessibility services for making tools and technology accessible to specially abled people. His vision is to provide accessibility to 1.3 billion population of specially abled people around the world. His vision for 2020 is that he wants to provide digital wellness to everyone. By the way, he is also a digital wellness ambassador, which I will ask him to talk more about. और ये चाहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोग रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। ध्यानेश्वर जी, आई वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू एजाज सर। ध्यानेश्वर जी, बिना आपका वक्त जाया किए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ऑडियंस को आप बताइए व्हाट इज डिजिटल वेलनेस और इसके बारे में थोड़ा सा और लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिए। ओवर टू यू। Sure, जी, thank you so much. Thank you एजाज सर एंड थैंक यू AKTU मैनेजमेंट टीम मुझे ये मौका देने के लिए ताकि मैं यंग माइंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और डिजिटल वेलनेस के बारे में उनके साथ कुछ व्यूज़ और कुछ साइंटिफिक डेटा शेयर कर सकूं। तो इसके पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये सेशन टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को बुरा कहने के लिए ये सेशन नहीं है। रादर हम सब जानते हैं कि ये ऐसा इरा है, वी आर लिविंग इन द इरा एंड इन द पीरियड एक्चुअली wherein we are thriving and surviving on technology. So technology is definitely playing a very big role nowadays. Even now you are able to listen to me because of technology only. So technology को हम बिल्कुल यहाँ पे और gadgets को बुरा कहने के लिए ये session नहीं है. Rather this session is to share some scientific data and facts with all of you so that we become aware and use this technology and gadgets more responsibly, as Ajaz sir has rightly said, so that we use them to our benefit and not become their victims. Okay, so let's start with this today's session. I just share my screen. So digital wellness, who is the master? Whether we are the master of our gadgets or gadgets are our masters. Okay. So we'll start with some simple bravery exercises. Yes, nowadays these are called as bravery exercises, not a big surprise for it. So 3 levels of bravery we are going to try. The first one is switch off all your notifications, okay, for this period of this session. The second level of bravery is switch off your mobile data. And the third level of bravery is switch off your mobile. I know the third one is absolutely difficult to try. And I know even some students who will be attending this session must be having their mobile data on to attend this session. So I'll not even expect that thing, but at least we can switch off all our notifications and put our mobile on silent mode, at least for the duration of this session, so that we can make the most out of it. Okay, so today's agenda will be impact of the high calorie digital consumption on various aspects. So we know guys that when we take high calorie diet, उसका हमारे सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव होता है, और because of the high calorie diet we become obese, right? So in the same way, when we take high calorie digital consumption or high digital consumption, the impact is on our brain and thinking, on our productivity and growth, on our relationships and family, and on our health and well-being. So this we are going to talk about. Okay, now
we are not only going to talk the problem side of it, but we are even going to talk about simple but powerful low calorie digital detoxification techniques as well. Okay, so this session is not only about talking the problems, but even we are going to talk solutions as well. Okay, so we all know this picture. We as students or friends, when we come together, then instead of enjoying the beauty of our friendship, we are busy with our gadgets even while talking with our friends. So I hope at the end of the session, the picture turns to this one, where we enjoy the human moments with our friends. And the beautiful poem I like to recite here, that wandering tales, open conversations, and friends without mobile around makes a wonderful difference in making our day life. Okay, so let's start with the first agenda point, impact on brain and thinking. So these are a few of the behavioral consequences of the new technology brain. And there are 4 aspects that we are going to discuss about: hyperactivity, inattention. Now let me clarify that hyperactivity and inattention both are very much interlinked. Okay, so the less is the attention span, more we become hyperactive. Okay, and as the hyperactivity increases, our attention span decreases. Okay, we are going to discuss this in detail. Depression, yes, World Health Organization has already proved that people who are more active or frequently active on the social media, they are more prone to depression. Reasons we are going to discuss, solutions also we are going to discuss. And the last but not least, multitasking mania. हम लोग जो बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग होनी चाहिए हम लोग, मैं आपको आज फ्रैंकली बताना चाहता हूँ विथ रिसर्च प्रूवन थिंग्स, मल्टीटास्किंग इज ईगो दैट वी कैरी ऑन आवर शोल्डर. मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए बहुत टैक्सिंग होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी उससे कम होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेटा दैट आई टॉक्ड अबाउट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन. तो ये आपको फेसबुक का कर्व हम इसे बोलते हैं. दिस इज, अब अगर आप देखेंगे तो 1980 में जो टाइम बिटवीन इंटरप्शंस, 2 इंटरप्शंस हैपन टू बी 2 hours. 1980 की बात मैं कर रहा हूं. अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो तब कम से कम 2 घंटे का समय रहता था, जब 2 इंटरप्शंस के बीच का टाइम 2 घंटे का रहता था. लेकिन जैसे ही आपको, आप में से बहुतों को याद होगा, पेजर्स इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद सेलफोन्स आए, फिर ईमेल का जमाना आया, फिर हम लोग मैसेंजर्स पे आने लगे, ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स. अगर आप देखेंगे तो इंटरप्शन, टाइम बिटवीन 2 इंटरप्शंस, ये कम होते 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 आज हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेन थ्रैशिंग थ्रेशोल्ड के बारे में बात की गई है. इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ही ब्रेन जो है हमारा इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाता है, लेकिन आज हम उसको इतना ओवरलोड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन से, डिजिटल कंजम्पशन से, कि ब्रेन का भी थ्रेशोल्ड, अभी माना ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो भी हमने क्रॉस कर दी है. अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बच्चे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते होंगे, तो आपने सीपीयू थ्रैशिंग का कंसेप्ट जरूर सुना होगा. सीपीयू थ्रैशिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आप एक साथ जब बहुत सारे एप्लीकेशंस कंप्यूटर में एक साथ चलाते हैं, तो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको हम बहुत डाउन कर देते हैं और हमारा एक भी एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं चलता है. यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ मल्टीटास्किंग की, कि अगर आप एक टास्क करेंगे प्रॉपर तो आपकी फुल प्रोडक्टिविटी वहां पे पिक्चर में आएगी. यहाँ पे सीपीयू थ्रैशिंग का जैसे एग्जाम्पल है, वैसे ही ब्रेन के साथ हमारा हो रहा है और हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक एंड स्ट्रेस्ड ब्रेन. ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि हमारा ब्रेन दिनों दिन हम उसको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसको हम वीक करते जा रहे हैं. ओके, सो ये ग्लोरिया मार्क करके प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में. शी सेंट अ बंच ऑफ ग्रेजुएट्स टू अ reputed company in Silicon Valley on an important project. And what she observed there, that these young graduates, young folks, they switch task and self-interrupted themselves every 3 minutes and 5 seconds. You can imagine. So you can imagine the productivity of these young graduates, that if they are interrupting themselves every 3 minutes and 5 seconds, what will be the productivity? Okay, so this was, if you see the article, this article, if you can go and check this article, it was research in 2008. Okay, अभी हम ये डॉक्टर डैनियल लेविटिन जो न्यूरोसाइंटिस्ट है, इन्होंने 2018 में जब रिसर्च किया तब उनको पता चला कि वो जो अटेंशन स्पैन है, सॉरी टाइम बिटवीन इंटरप्शन है, पीपल आर नाउ ऑलमोस्ट इंटरप्टिंग देमसेल्व्स एवरी 45 seconds.
राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ एन अलार्मिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हम जब बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि मल्टीटास्किंग जब हम बोलते हैं और हम फ्रिक्वेंटली टास्क के बीच में स्विच करते हैं, तो वी आर एक्चुअली डिप्लीटिंग आवर न्यूरल रिसोर्सेस। अभी इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूँ, तो डिप्लीटिंग आवर न्यूरल रिसोर्सेस मीन्स व्हाट? जैसे ब्रेन के जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन को हम कम करते हैं बहुत ज्यादा जब हम फ्रिक्वेंटली टास्क के बीच में खुद को माना स्विच करते हैं और इंटरप्ट करते हैं दो टास्क के बीच में फ्रिक्वेंटली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड शी ऑल्सो मेंशन्ड, यू कैन गो ऑन टेड टॉक्स एंड लिसन टू दिस लेडी वंडरफुल टॉक, टेड टॉक पे डॉक्टर डैनियल लेविटिन। शी सेड दैट द bunch of researchers at the Southern California University, they made a group of young teenagers, and they found that the teenagers who used to be on the social media while talking to their friends or doing their homework, down the line, 2 years down the line, their creativity is very much lessened, and they cannot think of their future properly, and they cannot even contribute to the societal problems as well. Okay, so this is the kind of era in which we are living. We need to be very careful about it, क्योंकि ये हमारे जो ब्रेन के रिसोर्सेस है उसको अगर हम इसी तरीके से डिप्लीट करते जाएंगे तो हमारी क्रिएटिविटी विल आल्सो बी एट स्टेक। ओके, ये थोड़ा सा और डेटा है, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों में हमको सोशल मीडिया गिफ्ट दिया है, उस कंट्री में, सॉरी, जिस कंट्री की कंपनी ने हमको ये सोशल मीडिया गिफ्ट दिया है, वहाँ की अगर आप देखेंगे यूएस में, लोग वहाँ पे 33% ऑफ देयर टाइम दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, और हम इंडिया में हमारा 40% टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, विच इज रियली समथिंग वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन। ओके, नाउ रीडिंग अ बुक वर्सेस सर्फिंग ऑनलाइन, राइट? मैं ये स्लाइड क्यों, व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस स्लाइड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो activated areas for the internet experienced group while performing the reading task and the internet task, अगर आप देखेंगे तो जहां पे इंटरनेट टास्क है राइट हैंड साइड में, वहां पर ब्रेन का ज्यादा एरिया एक्टिवेट हुआ है, और जब आप रीडिंग करते हो बुक, तब क्या होता है? तब आपका लेस एरिया ब्रेन का एक्टिवेट होता है, राइट? एंड व्हाई शुड आई बी कंसर्न बिकॉज ऑफ दिस? मुझे क्यों इसकी चिंता करनी है क्योंकि मेरे ब्रेन की जो कैपेसिटी है, मेरे ब्रेन का जो हेल्थ है, उसको मुझे मेंटेन करना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ कि मित्रों, गूगल पे जिंदगी के हर सवाल का जवाब नहीं होता है। जब आपको लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीजों के ऊपर अगर सोल्यूशन निकालना है, तो यू नीड डीप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और जो आपको रीडिंग से, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने से आपको मिलती है। देयर आर मेनी वंडरफुल बुक्स व्हिच यू कैन रीड, बाय दैट यू विल आल्सो डेवलप योर ओन पर्सनालिटी, you will have a different maturity level, and as well as you will save your brain as well. Okay, now impact of social media, that also we will talk. A false sense of connection leading to isolation, loneliness, broken relationships, infidelity and torn families. Now a false sense of connection, इसका क्या मतलब है? देखो, अभी आजकल हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो स्टेटस को है, वो फेसबुक के ऊपर हमारे कितने फ्रेंड्स है, उसके ऊपर हम हमारी आइडेंटिटी को जनरली क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, स्पेशली द यंग जनरेशन, राइट? लेकिन आपने कभी देखा है फेसबुक के ऊपर किसी ने डाला कि आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा गड़बड़ हो गया है? नहीं, एवरीबडी ऑलवेज पेस्ट अ वेरी वंडरफुल एंड ग्रीन पिक्चर ऑफ हिज लाइफ ऑन द सोशल मीडिया। फेसबुक के ऊपर लोग हमेशा कहाँ पे गए हैं वहां के फोटो डाल रहे, सब एकदम ग्रीनरी है, माना लाइफ एकदम गोइंग इन अ वेरी स्मूथ डायरेक्शन। तो जो बंदा बेचारा थोड़ा सा लाइफ में उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको लगता है कि सारी दुनिया खुश है, मैं अकेला दुखियारा इस दुनिया में हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन दैट वी गेट अटैच्ड टू। तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि हम हमारी आइडेंटिटी और हमारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। Okay, second thing is mental health effects. Yes, we already discussed that this leads to discontentment and depression. Why discontentment? मैंने कुछ पोस्ट डाला, उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे फ्रेंड लिस्ट में सपोज 500 लोग हैं, सिर्फ 4 लोगों ने लाइक किया, मुझे लगा कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। डिसकंटेंटमेंट स्टार्ट, एंड दैट स्टार्ट्स टू slowly you start kind of getting depressed about it, and you start waiting, your anxiety increases कि और कितने likes आने चाहिए, ये होना चाहिए, right? So this is again a very serious problem that we are facing. Increased distraction leading to decreased productivity, loss of job. Okay, and
this is actually a very important thing I want to mention here. One very important thing that Azaz sir knows that these companies nowadays they come for the campus placements, right? So I happened to give this session in one of the reputed colleges in Pune, और वहाँ के प्रिंसिपल से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ पे एक पुणे की बहुत रिप्यूटेड कंपनी में नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट्स अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो आए थे और उन्होंने हमारे कॉलेज से 30 बच्चों को सिलेक्ट किया माना वो ऐसे बच्चे थे कि जो सभी उनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटीज जो थी, एप्टीट्यूड टेस्ट से लेकर टेक्निकल टेस्ट से लेकर एवरीथिंग, एचआर इंटरव्यू सब कुछ हो गया था, और फिर उन्होंने 30 बच्चों को ऐसे शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन जब फाइनल उनको ऑफर लेटर्स आए, वो ऑफर लेटर सिर्फ 10 बच्चों को आए। मैंने पूछा ये बहुत अजीब है, ऐसे क्यों? उन्होंने बोला सेम मुझे भी लगा था सर। जब मैंने उनके एचआर पर्सन से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर हमने AHT एवरेज हंटिंग टाइम कैलकुलेट किया है, और जो बच्चे वो एवरेज हंटिंग टाइम के बाउंड्री में बैठ रहे हैं सिर्फ उनको ही हम ऑफर लेटर दे रहे हैं। अभी एवरेज हंटिंग टाइम क्या है? जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आप आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर मेंशन करते हो, और लोग मित्रों मैं आपको बताता हूं कि आजकल जब दिस मोमेंट पे आप सोशल मीडिया पे लॉगिन करते हो या इंटरनेट पे लॉगिन करते हो, इंटरनेट पे आप जाते हो, आपने आपका प्राइवेसी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस से लोग पता कर सके कि आप एवरेज कितना टाइम सोशल मीडिया पे रहते हैं। वो टूल्स भी अवेलेबल है, वो कैलकुलेट करके उन्होंने वो डिफाइन किया, और जो बच्चे उनके बाउंड्रीज में उनको मिले उस एवरेज हंटिंग टाइम के, सिर्फ उन बच्चों को ही उन्होंने ऑफर लेटर दिया। तो ये हम यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो हमको वी नीड टू टेक केयर बिकॉज द होल करियर इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। okay, then impact of social media is again decreased attention span, okay, leading to poor academic performance. yes, attention span ये बहुत बड़ी अभी चिंता की बात है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि गोल्ड फिश जो होता है उसका अटेंशन स्पैन 12 मिनट्स का होता है, और आज हमारे ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का अटेंशन स्पैन 8 मिनट तक गिर चुका है। फाइन, सो अगेन नीड टू थिंक वेरी डीपली, सटली। Increased risk of obesity and sleep disorders. Yes, we are going to talk in detail about the sleep disorders. Possibility of addiction disorder. Yes, जो मैंने शुरू में बताया कि why we are discussing all these things today, because technology is in place since ages. But what is the need to discuss all these things in this era? Because the impact of this high digital consumption is so subtle that it is impacting us negatively even without our knowledge. हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हमको अफेक्ट कर रहा है, and by the time we are aware there is already a huge loss in terms of our physical health and more importantly mental health, क्योंकि हम एडिक्ट होते जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आज हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम अवेयर हो सके, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे हम इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को डिटॉक्स भी नहीं कर पाएंगे। okay, and exposing children to online predators, especially small children, it's very dangerous, the social media exposure, and we can see the terrible impacts of it. Practically Hindustan Times had a news this 27-year-old dies of heart attack while playing PUBG in Pune. PUBG addiction lands teen in hospital with brain clots. 3-year-old addicted to mobile gets counseling. You can imagine, guys, 3-year-old addicted to mobile. Yeah, I also like to give here an example. I was taking this session in my daughter's school, and I got to know that a third grade student has a Facebook account. Okay, क्योंकि सोशल मीडिया पे थर्ड ग्रेड में जाने वाले बच्चे का फेसबुक पे अकाउंट है। यू कैन इमेजिन he is not matured enough to understand all these things. He is not able to handle the things so far, and he is having the Facebook account. And then if this we are not careful about, if parents are not careful about, this kind of incidents like the Bareilis you are shown here happens frequently. Okay, son kills father for not allowing him to play PUBG in Karnataka. Right, this is not to create a panic, friends, don't get me wrong, but I'm just trying to tell that we need to be responsible, because without our knowledge we are slowly becoming addicted to the gadgets. Okay, so this was the impact on our mind. Now let's see some impact on our body as well. Okay, so his body has been a wonderful gift given by the nature to us. We have to respect it. So see, in terms of eyes, so you must, if you feel that your eyes are burning and itching,
if you have a dry eye syndrome, you are getting headache very frequently and blurred vision, you must note that this is a screen that is affecting you. Okay, what is the cause of this? Small fonts on the screen, mobile screen, the blue light that is always radiated, okay, and staring continuously without blinking our eyes. What is the simple solution? 20-20-20, blink often. What is this 20-20 rule? That we need to, every 20 minutes, we need to take 20 seconds to focus on any object that is 20 feet away from us. The simple rule will help us saving our eyes, friends. Okay, next is the cell phone elbow. What are the symptoms? Numbness and tingling sensation in this area of the palm. You are able to see this? Okay, so why this happens? Because we are stretching and holding for long periods. What? The phone we are holding for a very long period and stretching are this area of the hand, and we are not aware about this fact that this is causing all these things. How can we remediate this thing? इसका solution क्या है? हमको जो at a stretch use है हमारा, उसको कम करना है और in between हमको breaks लेने हैं. Okay, then wrist problems, you are able to see this thing. What are the symptoms? Pain होता है हमको कहाँ पे? इस एरिया में. और इस किसकी वजह से होता है ये? डीजनरेशन ऑफ टेंडन्स, जो छोटी छोटी हमारे यहाँ पे नसें होती है, उसका डीजनरेशन इसके कारण होता है. और उसका भी रीजन क्या है? अगेन स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मोबाइल एंड इन सच अ पोस्चर. तो इफ यू सी द रेमेडी इज सिंपल, कीप चेंजिंग द पोस्चर ऑफ द फोन इन बिटवीन. ओके, टेक्स्ट क्लॉ, दिस इज अनदर स्टफ. अभी आपने देखा होगा कि बहुत बार एक हाथ में हम फोन ऐसे होल्ड करते हैं और हमारा जो थंब होता है वो हम हमेशा कैसे करते हैं? 4 उंगलियां ऐसे नीचे होती है और थंब उसके ऊपर हम ऐसे टाइप करते हैं. ओके, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फैशन स्टेटमेंट एज वेल नाउअडेज. सो इट्स सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? हमारे थंब में पेन होता है, हैंड, रिस्ट, और इसका जो अगर मेडिकल जार्गन में आपको सुनना है तो इसको बोला जाता है कार्पेल टनल सिंड्रोम और टेंडोनाइटिस. इसके कॉजेस क्या है? बहुत ज्यादा टेक्सटिंग करना, टाइपिंग करना, ब्राउजिंग करना, इसकी वजह से होता है. इसको रेमेडी क्या है? हमको कीपैड को बहुत लाइटली टच करना है, बहुत जोर से कीज को दबाना नहीं है. डोंट ग्रिप द फोन टू हार्ड, बहुत ऐसे जोर से फोन हमको पकड़ना नहीं है. एंड वी नीड टू मेंटेन द गुड पोस्चर ऑलवेज. ओके, एंड दिस इज नाउ दिस स्लाइड, बी वेरी केयरफुल इन सीइंग दिस स्लाइड. दिस इज द मोस्ट काइंड ऑफ अलार्मिंग सिग्नल, बिकॉज ये आजकल 25 साल से 20 साल के एज के पर्सन से लेकर के तो हाई एज के पर्सन जो मोबाइल हैंडल करते हैं उन सबको ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम मोबाइल को देखते हैं हमारे शोल्डर्स, आप देखिए द पोजीशन ऑफ इट, अपर लोअर बैक एंड हेड फॉरवर्ड. ओके, सो इफ यू सी टेक्निकली द बर्डन ऑफ स्टेयरिंग एट अ स्मार्टफोन, अगर आप इस अलग अलग डिग्री को देखेंगे, जब 60 डिग्री LB इट्स पाउंड, सो डोंट वरी, दिस मेजरमेंट यूनिट डजंट मैटर. लेकिन ये एंगल जो है, जब आप 60 डिग्री में देखते हो तो इतना सारा वेट आपके स्पाइन के ऊपर आता है. योर स्पाइन गेट्स बैडली अफेक्टेड बिकॉज द स्पाइन इज बेयरिंग हेवी वेट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ योर नेक, राइट. 49 जब आप इस पोजीशन में होते हो तो इतना होता है, और जब आप स्ट्रेट होते हो तो योर स्पाइन hardly wears any weight on it, and you help yourself in maintaining your spine healthily. And this is very important guys. अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा टाइम मिला तो आप देखना, स्पाइन का जो हेल्थ है वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. इसलिए इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान रखना है. तो सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के फ़ोन ब्राउज करने का, तो टेंशन, हेडेक, neck and shoulder pain. Now that's why I said that neck and shoulder pain is very common nowadays. Difficulty when it reaches a threshold again, तो आपको ब्रीदिंग में भी तकलीफ हो सकती है, पेन इन चेस्ट एंड लो बैक पेन एज वेल. ओके, तो इसका भी क्या कॉजेस है? टेक्सटिंग, टाइपिंग एंड ब्राउजिंग. होल्ड फोन एट आई लेवल, हमेशा अपने फोन को हमको आई लेवल पे ऐसे पकड़ना है जब भी हमको करना है. और रेगुलर नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं. ये तो बहुत सिंपल चीज है, राइट, क्योंकि नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अभी यहाँ पे मैं कोई स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक का पोस्चरल हेल्थ और फिजिकल बोन हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एक्सरसाइज उसने करनी चाहिए. लेकिन 2 सिंपल चीजें मैं जरूर कहूंगा कि सिंपली अपने नेक को ऊपर लेके जाना, बीच बीच में नीचे लेके आना, उसको साइडवेज में लेके जाना, ये छोटी छोटी सिंपल चीजें हम इंटरमिटेंटली, अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको सेव कर सकती है, आपके स्पाइन को बचा सकती है. Okay, now let's come to this blue light exposure. I was talking about the sleep disorders in previous slides.
हमारे बॉडी में एक मेलाटोनिन करके हार्मोन रहता है। ओके, ये मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे स्लीप शेड्यूल को रेगुलेट करता है, राइट। हम जो सोते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और बहुत लोगों को आजकल ये आदत है कि रात को सोते वक्त सभी लाइट्स घर में बंद है, हम रीजन देते कि फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और लाइट बंद करके हम फोन को देखते हैं। वो जो ब्लू लाइट उसमें से रेडिएट होता है वो हमारे मेलाटोनिन इस हार्मोन को बैडली अफेक्ट करता है और हमारे स्लीप शेड्यूल्स को डिस्टर्ब करता है। और अगर आप देखेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो सकते हैं। हमारा रेटिना धीरे धीरे डैमेज हो सकता है, हमको बहुत यंग एज में कैटरैक्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इन सम केसेस देयर इज अ कनेक्शन, दे आर फाइंडिंग दैट there can be a risk of breast and prostate cancers as well. Obesity risk we have already discussed, depression we discussed, neurotoxin buildup होता है, ये भी एक केमिकल है हमारे ब्रेन में जो makes it even harder for you to get a good sleep. So it's a vicious circle, right? So you start looking at night and then your sleep is disturbed. Because your sleep is disturbed, your neurotoxin is disturbed, again then you are not able to sleep, so you get into that vicious circle again and again. Okay, and it becomes for students harder to learn to focus, right? And even the memory gets impacted. So these are the consequences of using this high blue light. Means in the dark light you are using this blue light, when it's radiate it impacts your melatonin, which is a sleep regulating hormone. Okay, so what are the tips for this healthy phone use, healthier phone use? बहुत सारी सिंपल चीजें हैं कि सोने के पहले 1 घंटा पहले मोबाइल को आपको बाजू में रखना है, ये डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स में हम डिस्कस करेंगे ही। ब्राइटनेस को हमको टर्न डाउन करना है एज मच एज पॉसिबल। जब आप फोन किसी को लगाते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप किसी को फोन लगाते हो और जब रिंग जाता है तब आपका फोन हाईएस्ट रेडिएशन पे होता है। इसलिए जब आपने किसी को फोन लगाया है तब तक, जब तक वो पर्सन उठाता नहीं तब तक आपको उस फोन को आपके बॉडी से दूर रखना है। ओके, हैंड्स फ्री डिवाइस आपको यूज करना है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आपको स्पीकर फोन पे रखना है एज मच एज पॉसिबल। और सबसे बेस्ट, जितना हो सकता है कम से कम हमको कॉल्स जो नेसेसरी है उतने ही कॉल्स हमको लेने हैं और उसका ड्यूरेशन भी हमको कम रखना है। ओके, सो ये टेक्निकल सॉल्यूशंस की मैं कुछ बात करूंगा कि अगर आपको ब्लू लाइट का जो है, आजकल तो काफी जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी ब्लू लाइट फिल्टर होता है, तो आप उसको ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई किसके पास अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप मैक, अगर कोई iOS फोन यूज कर रहा है तो मैक के लिए justgetflux.com वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहां पे आपको इसके लिए ऐप मिल जाएगा। और एंड्रॉइड के लिए ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे ट्वाइलाइट करके ऐप है जो आपके ब्लू लाइट के इफेक्ट को कम करने में आपको हेल्प करेगा। Okay, now this smartphone syndrome, we all discussed all these things in detail in the previous slides. Okay, so यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे घर में अगर किसी के घर में बच्चे हैं और किसी के घर में अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, माना न्यू बॉर्न इज सपोज टू कम इन सम न्यू होम, तो वहां पे आपको अवेयरनेस जरूर फैलाना है कि जो यंग माना छोटे बच्चे होते हैं और इवन जो ऊम में रहते हैं, जो अभी बाहर माना दुनिया में आने वाले हैं, उनके ऊपर ये रेडिएशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, बिकॉज देयर स्केलेटन इज मोर एब्सॉर्बेंट ऑफ दिस रेडिएशंस। तो ये भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है। Okay, now this is an IITian, guys. You everyone including me, we all respect the IIT people, right? India's highest educational institute, we can say. This IIT professor now telling this thing that he asks people to curb the mobile phone use, and he says that you should not use your mobile phone for more than 30 minutes a day, and it's a risky affair if you use it more than 30 minutes. I know in this today's era it's not practical to say this thing, but yes, we can try our level best to curb our mobile uses, minimize the mobile uses. And even here most important thing, आप लोगों को पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो ये आप समझ लीजिए कि ऑप्ट फॉर सेल फोन्स विथ लोअर सार वैल्यू। ओके, ये एब्सॉर्प्शन रेट होता है, रेडिएशन का ये मेजरमेंट होता है। अगर आप *#07# ऐसा आपके फोन के ऊपर से डायल करेंगे तो आपके मोबाइल का रेडिएशन वैल्यू कितना है वो आपको पता चलेगा और उसके स्टैंडर्ड्स क्या है वो भी पता चलेंगे। तो आप ये देख लेना कि कितना आपका रेडिएशन है आपके फोन का। और जब भी आप अगर नया फोन खरीदते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो फोन आप लेंगे वो कम से कम रेडिएशन वाला होना चाहिए। Okay, and the rest of the things we have discussed. So he has also mentioned that keep cell phone away from bedside while sleeping. Okay, and do not keep cell phones in hand or pocket for a long time. Okay, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं अगर हम ड्राइव कर रहे हैं या कुछ माना
ड्राइव कर रहे टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से, तो हम मेक श्योर करें कि हम अपने पास जो बैग है या फोर व्हीलर में डैशबोर्ड है उसके ऊपर फोन रखें, ना कि अपने पॉकेट में, क्योंकि उसका रेडिएशन हमेशा ऑन रहता है. Okay, so what is the end result of overuse of this digital technology, friends? Okay, wonderfully mentioned, hollow hearts and shallow minds. Okay, माना इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे जो हार्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उसकी जो कंपैशनेट नेचर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हमारे मन की जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इसका सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि घर में माता पिता हमारे जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम अपने गैजेट्स में बिजी है, और वो बेचारे फिर नॉट ओनली पेरेंट्स बट इवन अमंग द फ्रेंड्स, द पिक्चर दैट आई शोड एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन, कि हमारा उसके फ्रेंडशिप के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग, कोई अगर हमसे कुछ बात कर रहा है तो उसको 100% अटेंशन देना इज अ स्किल, इज अ रिक्वायरमेंट. ओके, अब जब आप दूसरे किसी को ध्यान से सुनेंगे तभी लोग भी आपको ध्यान से सुनेंगे. ओके, तो ये एंड रिजल्ट क्या है, तो हॉलो हार्ट्स एंड शैलो माइंड्स. तो इट्स हाई टाइम गाइज, वी नीड टू टेक प्रेस द पॉज बटन. कहीं पे रुकना है हमको. ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये हिंदी फिल्म में बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, कि वो सॉन्ग कहता है कि अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि किस्मत हंस पड़ेगी. और सच में अगर आप देखेंगे तो ऐसा समय, ऐसे पैंडेमिक में हम अभी जी रहे हैं जहाँ पे सच में नेचर हैज लाफ्ड ऑन अस. हम इतने गति से दौड़ रहे थे, लेकिन हमको इस छोटे से विषाणु ने हमारा पूरे जीवन को पॉज करके रख दिया है. तो इसलिए हमको अभी जरूरत है कि सच में इस टाइम को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें. अगर हमको अभी तक जो भी हमने सुना है इस प्रेजेंटेशन में, अगर हमको रियलाइज हुआ है कि यस देयर आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हजार्ड ऑफ over usage of technology, high digital consumption, then we need to press this pause button, take a pause, reflect upon. So can we change this downward trend? जैसे मैंने बोला कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करने वाले हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हम ये चीजों को डाउनवर्ड ट्रेंड माना, क्या अभी ये जो हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, क्या हम उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम जरूर कर सकते हैं, और इसमें फिर से हमारा ब्रेन ही हमको हेल्प करने वाला है. हमारा ब्रेन हमारा वंडरफुल फ्रेंड है, फ्रेंड्स. ओके, सो ब्रेन का एक फीचर, ब्रेन का एक माना आई कैन से इट्स अ फीचर ऑफ द ब्रेन, इट्स कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. ओके, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रीवायर इटसेल्फ और चेंज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स और अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज दैट वी आर परफॉर्मिंग. ओके, तो इसका मतलब क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि अगर सपोज हमको लगता है कि हम डिजिटल गैजेट्स जो है, हमारे जो भी गैजेट्स है और टेक्नोलॉजी है, हम थोड़ा ज्यादा उसके क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं कर पाए, लेकिन हमको हमारी आदतों को चेंज करना है. सिर्फ डिजिटल गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में ही नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट किसी भी आदत को हमको रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है. तो ये क्या होता है कि सपोज हम कोई चीज, सपोज आपने डिसाइड किया कि आज से मुझे सवेरे उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवेरे सवेरे उठने के बाद जब आपका माइंड एक क्लीन स्लेट की तरीके से होता है, जो इनपुट्स आप मॉर्निंग में उठने के साथ लेते हो दैट स्टेज विथ यू फॉर द होल डे, बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर सिस्टम. व्हाटएवर इनपुट यू टेक इट हैज टू गेट प्रोसेस्ड, और वो दिन भर आपको आपके साथ रहेगा. इसलिए अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे कल से 1 घंटे तक सवेरे उठने के बाद मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, यू कैन डू दैट. व्हाई? बिकॉज इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो 1 वीक के ऐसे प्रैक्टिस के बाद आपके ब्रेन में न्यू कनेक्शंस ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं 1 वीक के अंदर. 8 वीक तक अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे तो आपके ब्रेन में फिजिकली ऑब्जर्वेबल ब्रेन चेंजेस होना शुरू हो जाता है, और new positive habits can be created with practice, right? So neuroplasticity is this concept, such an amazing concept, जो हमको हेल्प करेगा हमारी नई आदतों को डेवलप करने के लिए. आदत होती है अच्छी या बुरी. अगर आप अभी जैसे कोई एग्जांपल देता है कि मैं करना चाहता हूं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे हो जाता है. Why? Because your brain is used to do that thing, और brain always follows the easy path. क्योंकि आप आज तक गुस्सा करते आए, जैसे ही ट्रिगर आया ब्रेन को पता है कि दिस इज इजी पाथ, वो फॉलो करता है, आपसे गुस्सा हो जाता है, और बाद में आपको लगता है मुझे तो करना नहीं था, लेकिन नहीं, ब्रेन को इजी पाथ था, उसने फॉलो कर लिया. तो जब आप ये इजी पाथ आपके लिए बनाएंगे कि नहीं मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, ये आप 1 वीक तक करेंगे, और उसको कंसिस्टेंटली 8 वीक तक अगर करते रहेंगे, धीरे धीरे आप आपके गुस्से के ऊपर या कोई भी ऐसी आदत है जो आपके पर्सनैलिटी को हैम्पर कर रही है, उसको आप रेक्टिफाई जरूर कर सकते हैं.
ओके, सो इसके लिए हमको प्रैक्टिस डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स रेगुलरली फॉर ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स. एंड व्हाट आर दोस डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स वी विल सी. Okay, so powerful detox mantra, we all are talking about digital, so let's see what this digital means. So D is be diligent and disciplined. Yes, unless and until we are disciplined, we are not able to achieve anything in our life. This is very important, friends. Second is introspect periodically. We have to find the me time. We have to introspect. We have to spare some time for our own selves in a day, for sure. Then be grateful and not greedy. Okay, grateful. Gratitude is something which is the core of anything in life. I have read this wonderful proverb that when nothing seems to work in your life, bring in gratitude. Count your blessings, friends, what you are gifted with, and see what nature has provided you, or everything around has provided you. Be grateful about it. Okay, then I get involved in things outside of yourself. Very important thing. अभी जब आप कुछ किसी मोटिव के बिना किसी के लिए कुछ करते हो तो उसका एक अलग ही मना सेटिस्फेक्शन होता है. जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं और मेरा फ्रेंड पार्टनर जो है, हम लोग जो मना ऑर्गेनाइजेशन हमारा है टेकविजन, जैसे एजाज सर ने बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल करने का काम करते हैं. तो हमारे यहाँ पे हम जो भी ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी का हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं हमारे यहाँ पे जो आते हैं. ओके, तो वो जो है इसका हम कोई चार्ज नहीं करते हैं. ये मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि जब आप किसी मोटिव के बिना कुछ चीज करके देखते हैं तो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन इटसेल्फ. टी, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. और इस समय ने, इस छोटे से विषाणु ने हमको बता दिया है कि अगर लाइफ में कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो हम है और हमारी फैमिली है, क्योंकि वही हमको काम में आती है जब डिफिकल्ट टाइम होता है. ओके, ए, experience awe at least once a month and ask each time you move your hand to lift mobile. Okay, हमको हमेशा लाइफ मंथ में एक बार awe means what, again it comes to gratitude, कि हमको count your blessings, हमको क्या क्या दिया है इस नेचर ने, ओके, सराउंडिंग्स ने, हमारे पेरेंट्स ने. एंड आस्क each time you move your hand to lift the mobile. जब भी हम मोबाइल को लेते हैं हमको पूछना है कि मैं किसी क्रिएटिव चीज के लिए इसको उठा रहा हूं या जस्ट ब्राउज करने के लिए उठा रहा हूं. बिकॉज आवर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस वी स्टार्ट वैल्यूइंग आवरसेल्व्स, एवरीवन विल वैल्यू अस अराउंड. एंड एल, टेक लेजर ब्रेक्स टू लाफ एंड टू लिव. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स. ओके, सो 7-day detox plan, you can try it out for sure. It's a very wonderful plan, right? The day first you can stop using phone as alarm clock. लेकिन वो हेल्प कम करता है, आपको हार्म ज़्यादा करता है रेडिएशंस की वजह से. और अगर आप बाजार में जाएंगे तो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मैक्सिमम आपको अच्छे से अच्छा अलार्म क्लॉक मिलेगा. तो आज आप वो जाके खरीद लीजिए और फ़ोन को अलार्म क्लॉक करके यूज़ करना बंद कर दीजिए. डे 2, लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम and make the bedroom e-free. Very, very, very important things. The day I realized and attended this session, from that day onwards, we all in family follow this practice. Myself and my wife keep the phone away from the room. Our bedroom is different, and the phone where we keep the room where we keep the phones is different, because the bedroom has to be e-free completely. Third, switch off all your notifications. Third day आपको ये try करना है. सो इफ यू सी, ये ग्रेजुअली हम कर रहे हैं, राइट? पहले ही दिन हमने बहुत बड़ी स्टेप नहीं ली है, हम स्लोली इसको कर रहे हैं ताकि डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारा ग्रेजुअली हो एंड वी गेट यूज्ड टू इट. फोर्थ डे, जब भी हम कोई भी मील ले रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हमको हमारे फोन को अपने से दूर रखना है. यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी हार्ड फैक्ट बताना चाहूँगा, फ्रेंड्स, कि हमारे टॉयलेट में जितने जर्म्स होते हैं उससे ज़्यादा जर्म्स हमारे स्क्रीन के ऊपर होते हैं. इसलिए जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं हमको अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना है. डे 5th, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली अनइंटरप्टेड फॉर 2 hours इन द इवनिंग. ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की इसमें, क्योंकि ये मैं हमेशा पूछता हूँ जब भी मैं ये सेशन लेता हूँ और लोगों को पहले बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ कि आपको कब याद है लास्ट टाइम कब आपने 2 घंटे आप कंटिन्यूअसली मोबाइल से दूर रहे थे? एंड मैक्सिमम द आंसर इज नो. सो 5th डे को हमको ये चैलेंज करना है अपने आप को कि 2 घंटे तक हमको अपने फोन से दूर रह के फैमिली के पास रहना है. ओके, डे 6, डू नॉट यूज मोबाइल फोन एटलीस्ट फॉर एन आवर बिफोर यू स्लीप. रीड अ बुक. ओके, बुक रीडिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमको सोने के पहले एटलीस्ट 1 घंटा मोबाइल से दूर रहना है.
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोते वक्त जो भी इनपुट हमारे दिमाग में जाता है, इट इम्पैक्ट्स आवर सबकॉन्शियस, इट इम्पैक्ट्स आवर स्लीप क्वालिटी एंड इट इम्पैक्ट्स आवर ओवरऑल हेल्थ एज वेल. Day 7, remove social media apps from your phone and celebrate a screen-free day with your loved ones. This is a big thing. Remove social media apps बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर आप ये कर भी नहीं पाते हैं तो भी एक दिन के लिए अगर आप स्क्रीन फ्री डे मनाते हैं, and you can see the quality of life that gets improved with this thing. ओके, सो ये कुछ व्हाट डिटॉक्स बेनिफिशियरीज हैव टू से, ये कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों के. वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम. तो ये सेशंस बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस में लेने के पहले सबसे पहले मैंने मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में टेकविजन में ये सेशन लिया था. और जो भी मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं बोलता हूँ, हमारा टीम है, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो इनके खुद के शब्दों में मैंने यहाँ पे उनके टेस्टिमोनियल्स लिखे. बहुत उन्होंने बड़े लिखा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपके सामने रखा है कि उन्होंने, और वो सभी 20-25 के बीच में है एज ग्रुप. ओके, वेरी यंग पीपल. सो दे सेड दैट दे आर इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी एंड फोकस्ड, हेल्दी एंड प्लीजेंट फैमिली इंटरेक्शंस फॉर श्योर, क्योंकि खाते वक्त भी मोबाइल हाथ में रहता है, पेरेंट्स बात करते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता था, लेकिन हमारे अभी फैमिली के साथ इंटरेक्शंस काफ़ी हेल्दी हुए हैं. नेक एंड बैक पेन रिड्यूस ड्यू टू पोस्चरल करेक्शंस. 20-25 के एज में लोगों को बैक पेन होता है, यू कैन इमेजिन. तो लोगों ने बोला कि जब भी उन्होंने ये चीज़ें पोस्चरल करेक्शंस किए अपने आप में, उनका नेक और बैक पेन हैज रिड्यूस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिक्रीज्ड इन फोमो फियर. फोमो इज व्हाट? फियर ऑफ मिसिंग आउट. ओके, ये जो हमारे बार बार नोटिफिकेशंस बजते हैं ना, और हम अगर नहीं देख पाते, हमको लगता है द अर्थ विल गेट शैटर्ड, दुनिया की बहुत कोई चीज बड़ी मैं मिस कर दूंगा. नो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द थिंग. आपके एक नोटिफिकेशन न देखने से दुनिया में कोई भूकंप नहीं आने वाला है. रादर आपके माइंड को आप बार बार, जैसे हमने डिस्कस किया इन डिटेल, की यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन, एंड दैट इज द वे यू आर weakening your brain itself. You say, don't worry, nothing is going to shatter. Earth is not going to shatter if you're not checking your notifications for some amount of time. ओके, सो ये प्रैक्टिकल टेस्टिमोनियल्स मैंने देना चाहे ताकि आपको पता चले कि लोगों को इसका कितना बेनिफिट हो रहा है. तो फाइनली एक मंत्र हमको याद रखना है कि मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं. ओके, सो आई एम द मास्टर, नॉट द गैजेट इज द मास्टर. ओके गाइज, सो डिजिटल वेलनेस एम्बेसडर्स, यस, अगर आपको ये जो भी मैसेजेस अभी तक का जो भी फैक्ट्स आपने सुने, आपको लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट्स, एंड नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो आई शुड कन्वे ऑल दिस फैक्ट्स टू माई नियर एंड डियर वंस, टू माई फ्रेंड सर्कल और एनीबडी एल्स, आप भी डिजिटल वेलनेस एम्बेसडर बन सकते हो. इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस URL पे जाके और डिटेल्स चेक कर सकते हो. जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें से काफ़ी सारा डेटा अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल वीडियोस सब इस URL पे है, क्योंकि मैंने जैसे मल्टीटास्किंग के बारे में बात किया, तो मल्टीटास्किंग में भी साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है कि 2 ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, एक सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग, दोनों के ब्रेन के MRIs किए गए, और उससे पता चला कि सिंगल टास्किंग एट ए टाइम, एक टास्क पे फोकस करने वालों का प्रोडक्टिविटी इज मच मच हायर देन पीपल हु आर डूइंग द मल्टीटास्किंग. तो ये सब चीजें आपके इस URL पे मिल जाएगी. ओके, सो व्हाट इज द की टू डिजिटल वेलनेस? वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड. अभी हम थोड़ा सा अलग एक जोन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सब टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड किया, हमने साइंटिफिक फैक्ट्स देखी, सब कुछ देखा, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? अनलेस एंड until we do this, we won't be able to implement any of the digital wellness techniques. So what is that single key? And that single key is I must learn to discipline my mind. Very, very, very important, friends. I did not write I must learn to control my mind. We cannot control our mind. We should not try to control our mind. Rather, we should discipline our mind if we want to really achieve digital wellness in our lives. ओके, और ये डिसिप्लिन हम माइंड को कैसे कर पाएंगे? ओके, सो डिसिप्लिन करने के लिए हमको पहले अपने माइंड को काम करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ओनली द साइलेंस of the mind gives you a productivity, gives you a focused approach. As you rightly said, that calm mind is a wellspring of concentration. और हम कैसे इस स्टिलनेस को, कामनेस को अचीव करेंगे? उसका एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, which is reconnecting with the self. Okay, meditation is not now a new thing, everybody knows about it,
everybody has started, many people have started practicing it, especially in this pandemic. ये जो भी 2-2.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं, लोगों को पता चला है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दुनिया में सिर्फ भौतिकता या मटेरियलिज्म ओनली काम में नहीं आता है, हमको अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को, अपने इमोशनल क्वेश्चन को भी डेफिनेटली डेवलप करना पड़ेगा अगर हम आने वाले चैलेंजिंग टाइम्स को पॉजिटिवली फेस करना चाहते हैं। सो ट्राई टू डू द मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसका एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है हीलिंग यूर सेल्फ। वन ऑफ द मीनिंग इज हीलिंग यूर सेल्फ। इसलिए कोई डरने की बात नहीं कि मेडिटेशन माना मुझे घंटों घंटों ऐसे बैठना पड़ेगा पालती मार के, नहीं। मेडिटेशन हैज अ वेरी बिग ब्रॉड मीनिंग। ओके, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज एन इंडिविजुअल जर्नी जो हर एक को खुद को करनी पड़ती है। आप एक्सप्लोर कीजिए, जो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको अच्छी लगती है, ट्राई टू डू दैट। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और अंडरस्टैंड करना है, और एक URL है, यहाँ पे जाके आप इनपुट्स ले सकते हो, आपको कैसे सूट करता है देख सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट इट एंड स्टार्ट ऑन दिस सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो पॉजिटिवली एंड होलिस्टिकली इन आवर लाइव्स। Okay, so with this, I really wish a healthy and joyful life to all of you students. I'm really happy to interact with you today. I just want that at the end, we all should be having a happy family. If you see this family is enjoying their dinner or lunch, whatever it is, and nobody is having a gadget in their hands. तो अगर आज आप अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं इस सेशन को, तो मैं सिर्फ एक चीज आपसे मांगूंगा कि आज आप अपने आप से ये वादा कीजिए कि आज के बाद एटलीस्ट खाना खाते वक्त, कोई भी खाना, फिर ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आप आपके गैजेट्स को आपसे दूर रखेंगे। इतना वादा मुझे आपसे चाहिए। और दूसरी चीज कि जब भी आपका कोई भी फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, कोई नियर एंड डियर वन हो, जब आपसे बात कर रहा होता है, प्लीज गिव हिम 100% अटेंशन, बिकॉज many a times there are people who just want to वेंट आउट। उनको अपनी भावनाओं को सिर्फ व्यक्त करना होता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। इससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जो हमने अभी रिसेंटली विटनेस किया है। इसलिए कोई अगर आपसे बात करता है, प्लीज आपके गैजेट्स को आपसे दूर रखिए और उस पर्सन को 100% अटेंशन दीजिए, क्योंकि आप भले उसको सोल्यूशन दे नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ सुनने से भी उसका मन हल्का होता है। तो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, नियर एंड डियर वन हो, प्लीज लिसन टू पीपल एंड कीप योर गैजेट्स अवे व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू। Okay, thank you so very much. With this, I come to an end of this slide. I now open this session for the question and answers. Gyaneshwarji, thank you. We understood from the presentation that to be digitally healthy, the key is to discipline the mind. Yes. However, today there are so many digital temptations and so many distractions around, and the mind falls prey to them easily. How do you think we should overcome this? Yes. So it's a wonderful question. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब हमको अभी ये चीज़ रियलाइज हुई है कि डिजिटल वेलनेस कितना इम्पोर्टेंट है, तो अगर हमको सच में ये रियलाइज हुआ है तो हमको अपने आप को एक क्वेश्चन जरूर पूछना है कि क्या मैं सचमुच इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, हमको बहुत डीप रिफ्लेक्टिव माइंडसेट में जाके शांति से बैठ के अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं सच में इससे बाहर आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ। जो आंसर आपको मिलेगा, अगर आपको मिलता है कि यस मैं सच में आना चाहता हूँ, देन द फर्दर जर्नी इज क्वाइट इजी। फिर उसके बाद भी हो सकता है, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी देखा, हमको इतने समय की आदत है डिस्ट्रैक्शंस को फॉल प्रे होने की, तो हो सकता है हम फिर से उसको फॉल प्रे, वी मे फॉल प्रे टू दिस थिंग्स, बट देन डोंट कर्स यूर सेल्फ। अपने आप को आपको कोसना नहीं है। एक बहुत हिंदी अच्छा एक गीत है कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो हमको इस जर्नी पे आगे जाना है, हमको हिम्मत रखनी है, हमको एक दिन जरूर विक्ट्री मिलेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट याद रखिए, और ये याद रखिए जब भी आपको कोई ट्रिगर आता है और आपको लगता है कि आप फिर से उस टेम्पटेशन में जाने वाले हो, याद रखिए कि हर बार जब आप ऐसे करते हो तब आप आपके मेंटल और फिजिकल रूट्स को वीक करते हो। और जब लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है तो आपका ब्रेन हेल्दी होना, आपका माइंड हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंगल लास्ट आई से कि आस्क योरसेल्फ वेदर डू यू रियली वांट टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू। Gyaneshwarji, thank you.
हमारे साथ डॉक्टर बबीता भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर बबीता हाँ जी। कटारिया। शी इज द डायरेक्टर ऑफ यूआईसी। ओके। बबीता मैम, आप स्टूडेंट्स की तरफ से क्या पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो धनेश्वर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मैम। अच्छी चीज जो हम आजकल हम जो हर समय टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, वो हमारी जरूरत भी है और हमें उस जरूरत के साथ चलना भी पड़ रहा है, क्योंकि देश उसी हिसाब से चल रहा है, वर्ल्ड उसी हिसाब राइट से चल रहा है। राइट और स्टूडेंट्स की भी अगर हम आज की डेट में देखें तो हम सब कुछ कम्प्लीटली डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं। राइट और उसी के बीच में ये सोशल मीडिया का भी एक मेजर रोल है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन क्या इतना जरूरी है सोशल मीडिया का? हालांकि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीजें बताई हैं, मैं फिर से ये जानना चाहती हूँ, क्या इसका एक इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर? तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप और बता पाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू बबीता जी। ये स्टूडेंट्स की माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर तरफ सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, तो इसमें मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा। ही इज़ मिस्टर कैल न्यूपोर्ट, CALNEWPORT। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो टेड टॉक्स के ऊपर जाए और उनका सोशल मीडिया के ऊपर का टेड टॉक सुने। इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बहुत रिनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ओके, वो इनोवेशन करते हैं कंप्यूटर साइंस में, लेकिन इनका किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना खुद का प्रेजेंस नहीं है। और वो न्यूयॉर्क के बेस्ट टाइम सेलर उनका बुक है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने लिखा है, डिजिटल मिनिमलिज्म। तो ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि आपको पर्सनल सक्सेस के लिए, करियर के लिए सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो टॉक सुनेंगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी। उन्होंने उसमें दो चीजें मैं उस टॉक में से बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया है कि दो चीजें होती है। एक होता है सोशल मीडिया सर्वाइव कैसे करता है। सोशल मीडिया हमारी दो चीजों के ऊपर सर्वाइव करता है, एक हमारा अटेंशन और सेकंड है हमारा पर्सनल डेटा। ओके, और आप ये हैरान होंगे जानकर कि सोशल मीडिया कंपनीज के पास अटेंशन इंजीनियर करके एक पोस्ट होता है, डिजिग्नेशन होता है, एंड दे हैव डेडिकेटेड अटेंशन इंजीनियर्स, जो हमारे अटेंशन को कैसे हम फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रैक्ट करें ताकि हम उस चीज को एडिक्ट हो, उसी के ऊपर उनका काम चलता रहता है। मैं सॉरी कहूंगा, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप उस टॉक में जाके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए नोटिफिकेशंस, लाइक्स, ये सब चीजें क्यों इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि हम जैसे ही पोस्ट डालते हैं, हम कितनी बार देखते हैं कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने लोगों ने हमको कमेंट किया है। तो ये जो अटेंशन हमारा है, वो उनके लिए बहुत बड़ा इनपुट है, और एक हमारा डेटा, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े कंपनी, में नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े कंपनीज के सीईओ ने माफी मांगी है कि यस, हमने यूजर्स का डेटा यूज किया है। तो सोशल मीडिया, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के एरा में आपको कंप्लीटली कैल न्यूपोर्ट की तरीके से कंप्लीटली सोशल मीडिया के ऊपर से निकल जाना है। अगर आप कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि अलग एक एग्जांपल, मैं आज बहुत खुशनसीब हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी चलती है, आई एम वेरी मच अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा। वो सोशल मीडिया पे थे सिर्फ दो चीजों में। उनका वेबसाइट है apjabdulkalam.com। उस वेबसाइट का अगर आप जाके टाइटल देखेंगे, वहां पे लिखा है अ वेबसाइट फॉर इंस्पिरेशन एंड नेशन बिल्डिंग। और उनका फेसबुक पेज बिलियन बिट्स नाम से है, जहां पे लिखा है कि दिस इज एन इनिशिएटिव टू इंस्पायर द यूथ टुवर्ड्स रियलाइजिंग द डेवलप्ड इंडिया विजन। तो दोस्तों, अगर सोशल मीडिया के आपका प्रेजेंस है, तो इस तरीके से आप एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल सामने रखिए, उनको आइडियल सामने रखिए कि अगर सोशल मीडिया पे आते भी है तो भी उन्होंने नेशन के ऊपर, नेशन के हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूट किया। ऐसे क्रिएटिविटी अगर आप कुछ करते हैं, तो आई डोंट माइंड यू कमिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड बीइंग एक्टिव ऑन इट। I hope I was able to answer your question, Babita ji. Yeah, sir. Thank you so much. So nicely blended and so nicely you have told about everything. And सबसे बड़ी बात है जो अब्दुल कलाम सर का आपने एग्जाम्पल दिया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद उसके लिए। हाँ जी, थैंक यू बबीता मैम, थैंक यू। ज्ञानेश्वर जी, हमने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में काफी डिटेल में बातचीत की। हाँ जी। आजकल अगर आप देखें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आज स्टूडेंट्स के पास में कोई चॉइस नहीं है। क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आपकी कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था। इनफैक्ट आज स्कूल्स और कॉलेजेस वो खुद बच्चों को कह रहे हैं ऑनलाइन आने के लिए और वर्चुअल क्लासेस करने के लिए। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है,
तो एक आम तौर पे एक बच्चा जो है वो कम से कम 5-6 घंटे, और अगर वो खुद अपनी सेल्फ स्टडी भी करता है तो हो सकता है कि 7-8 घंटे या इससे भी ज़्यादा वो या तो लैपटॉप के सामने है या वो अपने फ़ोन के सामने है। ये चीज़ बिल्कुल विपरीत है जो अभी तक हमने बातचीत की है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कम से कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 2 घंटे या ज़्यादा, या पूरा पूरा दिन जो है आप अपने फ़ोन से दूर रहें, अपने गैजेट से दूर रहें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे इस लॉकडाउन की वजह से इवन मेरी बच्ची जो 9 साल की है उसके भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, और फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इट्स इनएविटेबल टू बी ऑन द स्क्रीन, नो डाउट अबाउट इट। अभी मैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के सेशंस लेता हूँ, लेकिन मैं खुद मेरा आईटी इंडस्ट्री से पाला है, इसलिए मैं भी मॉर्निंग में 10 o'clock में शुरू करता हूँ, रात को 7:30-8 बजे तक मेरा काम चलता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको पता है कि इंटरेक्टिंग विद द टेक्नोलॉजी इज इनएविटेबल इन करंट टाइम्स। लेकिन इसका ही जो हमने पूरे सेशन में सुना कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबली इसको यूज कर सकते हैं। पहली चीज, हमको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं। माना 1.5 घंटा 2 घंटा हुआ, हमको अपनी सीट से उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है। हमने 20-20-20 का रूल देखा, राइट? वो 20 every 20 minutes for 20 seconds we need to see 20 feet away from our screen so that we are saving our eyes. ओके, तो ये जो कुछ डिसिप्लिन है, और जब भी हम होते हैं, अभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक एक्सप्लिसिटली चीज कहना चाहूंगा कि वी नीड टू बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स दैट with the name of the technology, are we in between trying to get onto the social media and using that time to browse through social media? अगर आपको कॉलेजेस के लेक्चर्स के लिए अगर रहना ही है, इट इज इनएविटेबल, आई अंडरस्टैंड। उसके लिए हमने बीच में डिस्कस भी किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं, अपने पोस्चर चेक करने हैं, 20-20 का रूल फॉलो करना है, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये अगर हम फॉलो करेंगे, और जैसे ही आपको एक छुट्टी मिलती है, राइट, अगर आपको सच में इसमें से बाहर आना है, जिस दिन आपको छुट्टी है, उस दिन आप आपके फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप उस इम्पैक्ट से बाहर आ सके। और नेक्स्ट दिन, क्योंकि जब भी आप स्पेस देते हो अपने आप को, एक दिन टाइम देते हो विदाउट स्क्रीन, आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलता है कि मैं और कितना रिस्पॉन्सिबली अपने गैजेट्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 20-20 rule, responsible usage, being honest with ourselves when using the technology will help us in definitely addressing this problem. Tanushree ji, I think that was a very practical answer. Thank you. Yes. Dr. Babita, we have option of one more question. Would you like to ask any other question? Yes sir, definitely, because आज तो आपका सुनने के बाद हमें लगता है बस हमारे क्वेश्चन आते रहें और आप हमें आंसर करते रहें और हमारे बच्चों को फायदा होता रहे। तो इसी उसमें एक इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर जब हम भाग रहे हैं और इस तरह का हमारा दिनचर्या है कि हम सुबह चालू होके रात को भी हमें कोई टाइम नहीं है। एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए हैं, और उस खोने की वजह से हमारे अंदर एक आप कह सकते हैं कि शून्य आ गया है हमारी जिंदगी में। तो उस शून्य को, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम अपने लोगों के साथ जुड़े रहें, अपनी चारों तरफ जुड़े रहें, प्रकृति के साथ जुड़े रहें, सबके साथ जुड़े रहें। राइट। बबीता जी, ये भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आजकल बहुत हमारा यंग जनरेशन है, या चाहे हम भी है, कई बार हमको ऐसे लगता है कि लाइफ इज कम्प्लीटली काइंड ऑफ, देयर इज a kind of vacuum in the life and we don't see any purpose in life as such. ये क्यों हो रहा है? अब बहुत बार हम कहते भी कि आजकल लाइफ में कुछ मजा नहीं आता है। ये बहुत अभी दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली हर्ड स्टेटमेंट नाउअडेज। इसका रीजन अगर आपने प्रेजेंटेशन में सुना होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने ब्रेन को इतना डिस्ट्रैक्ट किया है, उसको इतना स्टिमुलेट किया है कि उसका थ्रेशोल्ड आ चुका है, और इसलिए हमको लाइफ में हम सब चीजें समझते हैं, हम सुनते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, हमको समझ में आता है, लेकिन हमको मूव फॉरवर्ड कैसे करें वो ही समझता नहीं, क्योंकि वो पुश हमको नहीं मिल रहा है, वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और कई बार यही चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तब फिर हम थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपको अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको करना चाहते लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज कि स्पीक टू समवन नियर एंड डियर वन, ओपन अप। आपको किसी से पहले, सबसे पहले बात करनी है, ओके? अगर
पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे फिर से एक बहुत अच्छी कहावत याद आ रही है, उसको कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी डिफिकल्टी में होते हैं, उस डिफिकल्टी को आपको एंटरटेन ज्यादा करने के बजाय किसी और डिफिकल्टी में जो बंदा है उसको अगर आप हेल्प करते हो, उसके लिए अगर आप कुछ करते हो, तो आप अपने आप उस डिफिकल्टी से निकलने में आपको नेचर, यूनिवर्स हेल्प करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने बोली कि यू नीड टू टॉक टू समवन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आपको लगता है कि उससे भी नहीं हो रहा है, तो मैं फ्रैंकली कहूंगा मेरे यंग फ्रेंड्स को कि डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग काउंसलिंग हेल्प, बिकॉज दैट इज नॉट, अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजकल काउंसलर के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक तबू हो गया है कि माना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जैसे आपको सर्दी खांसी होता है, वैसे ये भी कुछ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कोई चीज आपको हेल्प नहीं कर पा रही है। डोंट शाय अवे फ्रॉम स्पीकिंग अप टू समवन नियर एंड डियर वन और टेकिंग द मेडिकल हेल्प एज वेल। ओके, योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट प्ले विथ इट, nothing is more precious than yourself, so remember this thing always. थैंक यू सर, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात बताई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को जब इस तरह की प्रॉब्लम हो, या किसी भी जने को, बच्चों के नहीं, हम बड़ों को भी होती है, तो वाकई हमें अपने आप को, अपने दिल को कहीं ना कहीं खोलना चाहिए, दिमाग को कहीं ना कहीं खोलना चाहिए, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। इसीलिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा हम अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आंसर के लिए, और ये भी धन्यवाद कि आज मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। Over to Izaz, sir. Avidaman, thank you. Ganeshwarji, this was really an eye-opening session. It was very informative with a lot of scientific facts and most importantly with many practical solutions. I'm sure this will help not just the students but anybody who watches this video. Yes. Students, practically it's very difficult to live without technology now. But I just want to leave you with one question. Who is in control? Technology or you? Gyaneshwarji, thank you so much for taking out time for AKTU. On behalf of Honorable Vice Chancellor Professor Vinay Kumar Pathak, Honorable Vice Chancellor Dr. Vineet Kansal, all the faculty of AKTU, all the students, and especially from the UIC team, I thank you so much for taking out time and coming on this program and sharing this knowledgeable and informative session with us. Yes. Thank you. Thank you so much, Izaz sir and all the team, Babita ji, Izaz sir, Tapomai and Vineet ji, for giving me this opportunity to interact with the AKTU community, the student community, and all the faculty members. Thank you so much.